हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, विच इज ब्यूटिफुल पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, एंड Sunita Bhandari is reading for us. Good morning, everyone. Very good morning. Please start reading. Faith healing, what it means and how blind faith works. What is popularly termed faith healing is not the faith mentioned in the Bible, which means knowledge of the inner action of the conscious and the subconscious mind. A faith healer is one who heals without any real scientific understanding of the powers and force involved. He may claim that he has a special gift of healing, and the sick person's blind belief in him or his powers may bring results. The voodoo doctor in South Africa and other parts of the world may heal by incantations or touching. The so called bones of saints or anything else may heal a person, which cause the patient to honestly believe in the method or process. Any method which causes you to move from fear and worry to faith and expectancy will heal. There are many persons, each of whom claims that because his personal theory produces results, it is therefore the correct one. This is already explained in this chapter, cannot be true. या To तो इसमें illustrate 1 सेकेंड सुनीता। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि चाहे कोई भी आपको ना पानी भी पिला दे, जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं ना, वो ब्लाइंड फेथ ही होता है। कि मैं आपको अगर पानी लाके दूं और मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको पी लो, इससे आपका पेन हमेशा के लिए चला जाएगा और आप आज के बाद से आपके सिर में दर्द ही नहीं होगा। ये हमने बहुत सारे लोगों को दिया है और ये बहुत डिवाइन मेडिसिन है। अब आपको तो पता भी नहीं है ना वो मेडिसिन कहाँ से आ रही है, वो पानी कहाँ से आ रहा है। मैंने तो नॉर्मल अपने आरओ सिस्टम से भरा था उसको एक बॉटल में, और ये क्या के कहा कि ये वाला ना बहुत डिवाइन श्राइन का पानी है, आप इस पानी को पी लो और इससे आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, है ना। अब ये छोटी सी चीज मैंने आपको बोली है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग फेथ उस पे हो गया है कि यस आई विल हैव इट, आई विल हैव इट, और आप उस कन्विक्शन के साथ पीते हो, जिस कन्विक्शन के साथ मैंने आपको वो पानी दिया है कि ये बहुत डिवाइन श्राइन का पानी है। इसको पी के बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी आ गई है, लोगों की हड्डियां बिल्कुल मजबूत हो गई हैं, है ना, उनके ये ठीक हो गया है उनका हमेशा के लिए। आप भी ये पियो, देखना मैं बता रही हूँ कि आपका एकदम ये माइग्रेन शाइग्रेन जो आपका होता है वो एकदम 100% ठीक हो जाएगा, बिकॉज इस पानी की पावर ही ऐसी है। अब मैंने ये करके दिया है आपको, है ना, अब आपने वो पानी पिया। अब मैंने तो नॉर्मल अपने आरओ से भरा था वो पानी, वो कोई डिवाइन श्राइन का पानी नहीं था। ब्लड प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है दैट अगर आप किसी भी चीज को ब्लाइंडली मान लेते हो दैट यस अब मैंने ये पानी पी लिया है, अब मुझे कुछ नहीं होगा और मेरी हीलिंग बहुत डिवाइन तरीके से होगी, एंड इट स्टार्ट्स हैपनिंग दैट वे। सो इसीलिए लिखा हुआ है दैट स्ट्रांग फेथ ऑलवेज वर्क्स। हाँ जी, आप आगे पढ़िए। illustrate how blind faith works, you will recall our discussion of the Swiss physician Franzi Anton Mesmer. In 1776, he claimed many cures when he stroked diseased bodies with artificial magnets. Later on, he threw away his magnets and evolved the theory of animal magnetism. This he held to be a fluid which pervades the universe but is more active in human organism. He claimed that this magical fluid, which was going forth from him to his patients, healed them. People flocked to him, and many wonderful cures were effected. Mesmer moved to Paris, and while there, the government appointed a commission composed of physicians and members of the Academy of Science, of which Benjamin Franklin was a member, to investigate his cures. To report, to report admitted leading in facts claimed by Mesmer, but held that there was no evidence to prove the correctness of his magnetic fluid theory, and said the effects were due to imagination of the patients. Soon after this, Mesmer was driven into exile,
and died in 1815. Shortly afterwards, Dr. Braid of Manchester undertook to show that magnetic fluid had nothing to do with the production of the healings of Dr. Mesmer. Dr. Bray discovered that patients could be thrown into hypnotic sleep by suggestions, during which many of the well-known phenomena ascribed to magnetism by Mesmer could be produced. You can readily see all these cures were undoubtedly brought about by the active imagination of the patient together with a powerful suggestion of health to the subconscious minds. All this could be termed as blind faith, as there was no understanding in those days as to how to cure were brought about. या सुनीता, हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. थैंक यू. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you. सो इसमें डॉक्टर मेस्मा के बारे में लिखा हुआ है. डॉक्टर मेस्मा कुछ नहीं, एक ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फ्लूइड को यूज करके किसी को भी जहां पे प्रॉब्लम होती थी वहां पे या तो रब करते थे या पिलाते थे, जो भी, उससे क्योर करते थे. पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाता था. फिर ऐसा करते गए तो लोगों को बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन होने लगा कि ऐसा क्या जादू करते हैं ये, मतलब कोई कौन सा मैग्नेटिक फ्लूइड है, किससे वो मैग्नेटाइज करते हैं, कहाँ से चार्ज करते हैं, उसमें पावर्स कहाँ से आती हैं इतनी ज्यादा कि सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं. तो उन्होंने कमीशन बिठाया, सरकार ने, गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाया जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन हेड करते थे, ये ढूंढने के लिए कि वो ऐसा क्या करते हैं और कैसे मैग्नेटाइज करते हैं, वो मैग्नेटिक फ्लूइड क्या है जो जादू की तरह लोगों को ठीक कर रहा है और सबकी बीमारियां ठीक होती जा रही हैं. तो उनको एक्चुअली डाउट होने लगा था और एक्चुअली उनको एग्जाइल पे भेज दिया, उनकी प्रैक्टिसेस छुड़वा दी कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कोई वुडू टेक्निक कर रहे हैं, टोना टोटका टाइप का. तो उनकी प्रैक्टिसेस रुकवा दी, उनको एग्जाइल कर दिया और फाइनली उनकी डेथ ही हो गई वहां पे. सो बाद में जो दूसरे डॉक्टर आए उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये कुछ नहीं, ये हिप्नोटिक थेरेपी होती है जिससे वो ट्रीट करते थे. दैट हिप्नोटिक स्टेट में आप किसी को भी कोई भी सजेशन दे के जब उसको बोलोगे दैट आई एम गिविंग यू दिस और आई एम रबिंग दिस, तो वो इंसान ठीक हो जाएगा, है ना. यही तो अब मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड को आप कुछ भी बोल के रेपिटेशन के कारण स्लीपी ड्राउजी स्टेट में आप जो बोलोगे वो मानना शुरू कर देता है और वो आप देखोगे आप अपनी लाइफ में होता हुआ. तो उन्होंने पूरा ये सिखाया कि कुछ नहीं, इट इज नथिंग लाइक दैट. तो डॉक्टर ब्रेड जब बाद में आए तो उन्होंने डॉक्टर मेस्मर की सारी ये जो फ्लूइड वाली जो हीलिंग है इसका पर्दाफाश किया, इज व्हाट इट वाज लाइक, रिवील किया लोगों को और कहा है दैट ये वो यही यूज करते थे. ये मैग्नेटिज्म मेस्मर जी का था, डॉक्टर मेस्मर का, कि ये लोगों को हिप्नोटिक स्टेट में हेट्रो सजेशन देते थे कि बॉडी हील हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, इस तरह से, है ना. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो सारे क्योर्स का हमने ये जो एविडेंसेस देखे हैं वो पेशेंट्स की एक्टिव इमेजिनेशन के कारण था. उनको विश्वास दिला गया, मतलब दे वर मेड टू बिलीव दैट दिस इज, ये आपके लिए वर्क करेगी और ये इस तरह से आप इसके कारण बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना. सो दैट्स व्हाट इट इज टर्म्ड एज ब्लाइंड फेथ, जो पेशेंट्स के पार्ट पे था कि ठीक है ना. जैसे होम्योपैथी की शुगर वाली बॉल्स भी आप किसी को दे दो और ये बोल को दो कि अरे ये वाली ले लो, ये तो कमाल की मेडिसिन है, इससे तो आपका कितना भी पेन हो रहा हो आप देखना विद इन हाफ एन आवर आप भूल जाओगे कि ये वाला पेन कैसा है, ये इतनी कमाल की मेडिसिन है. मैंने 50 लोगों को और दी, उन सब ने भी यही बोला. अब वो थी क्या, वो नॉर्मल शुगर बॉल्स ही हैं, उसमें कोई होम्योपैथी दवाई नहीं डली हुई थी, नॉर्मल व्हाइट कलर की शुगर बॉल्स हैं. लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने उसको विश्वास दिलाया तो उसने विश्वास कर लिया, उसके विश्वास के कारण वो हील हुआ है ना, जबकि उसमें कोई दवाई नहीं थी. वो वाली स्टोरी है डॉक्टर मेस्मर की. दैट मीन्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली, डॉक्टर जोसेफ मर्फी जिन्होंने किताब लिखी है, ये हमको बिलीव कराना चाहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके आप कुछ भी दुनिया में हासिल कर सकते हो. यू कैन बी डू एंड हैव एनीथिंग. वो यही हमको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दिस इज सो अमेजिंग, इजंट इट. सो आज हम इतना ही करेंगे एंड थैंक यू सो मच.